My dear students, welcome to Methodological. There is a second session on coordinate geometry. So if you have not watched the first session, make sure to check out that first. Start करते हैं. So in this session, we'll be first discussing with equations of a line. So the first case is if slope of the line, which is m, and one point on the line is given. If slope is given and one point on the line is given, in that case the equation of the line will be y minus y1 is equal to slope of the line multiplied by x minus x1. Slope of the line multiplied by x minus x1. This is the first equation. Okay? Second case could be if only 2 points are given. 2 points on the line x1, y1 and x2, y2, only those 2 points are given. तो फिर हमें स्पेस यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, बाकी प्रोसेस तो ऐसा ही रहेगा, बट हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो इक्वेशन विल बी y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज आवर स्लोप मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1. तो इक्वेशन सेम ही है. द ओनली थिंग इज दैट इन द फर्स्ट केस स्लोप वाज गिवन, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया था. इस बार स्लोप हमने फाइंड आउट किया है, इसके बाद में इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट केस, थर्ड केस. If slope and y intercept are given, slope and y intercept are given, ये क्वेश्चन तो लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा. यार m इज द स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट. और y इंटरसेप्ट कब मिलेगा? when we put x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन. x को इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा. फोर्थ केस, when x and y intercept are given. When x and y intercept are given. So if x intercept is a and y intercept is b, the equation will be x upon a plus y upon b. This is equal to 1. ठीक है, where a is x intercept and b is y intercept. तो इक्वेशन बनेगा हमारा कुछ ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा कि x इंटरसेप्ट होगा a, सो दिस पॉइंट विल बी a, 0 और y इंटरसेप्ट होगा b, सो दिस पॉइंट विल बी 0, b. ओके, क्लियर है? नाउ लेट अस से देयर इज अ लाइन and equation of the line is ax plus by plus c, this is equal to 0, and there is a point a whose coordinates are x1, y1, and we need to find out minimum distance between this point and line. Minimum distance between the point and line. सो टू फाइंड आउट मिनिमम डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस तो कई सारी होंगी, डिस्टेंस वैसे ही मेजर कर सकते हो, दिस विल ऑल्सो बी द डिस्टेंस, यही मेजर कर सकते हो, बट मिनिमम डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन. तो इस पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ओके, और दैट विल बी डिस्टेंस. सो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज पॉइंट पी, तो ए पी, एंड इफ दिस डिस्टेंस इज डी, तो ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस डी, and that will be equal to, ठीक है, putting x1, y1 in the equation of the line, so d will be equal to a x1 plus b y1 plus c का mod value divided by square root of a square plus b square, यानी coefficients of x and y का square root. ठीक है, so distance d will be mod of a x1 plus b y1 plus c divided by root of a square plus b square. क्या ये पार्ट क्लियर है? This will be our distance. Okay, ठीक है.
Now similarly we can find out distance between two lines. Distance between two lines. So distance between two lines का मतलब ही तब है जब lines are parallel. Because if lines are not parallel, तब डिस्टेंस का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस चेंज करेगा. एक पॉइंट पे कुछ और डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट पे कुछ और डिस्टेंस होगा, और लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे. इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट, एंड इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज एट सर्टेन पॉइंट जीरो, और पूरे टाइम पे चेंज करेगी. सो दैट इज व्हाई डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ओनली डिफाइंड व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. सो देयर आर टू पैरेलल लाइंस, and let us say equation of the first line is ax plus by plus c1 is equal to 0. स्लोप तो सेम होगा बिकॉज पैरेलल लाइंस है. सेकेंड लाइन का इक्वेशन इज ax plus by plus c2 and this is equal to 0, and we are finding the distance between two lines. तो distance का formula will be distance between two lines. If this distance is equal to d, so d will be equal to mod of c1 minus c2 divided by square root of a square plus b square. सबसे पहले कोफिशिएंट्स को देखेंगे इक्वल हैं कि नहीं है एक्स और वाई के. अगर इक्वल नहीं होंगे तो पहले उनको इक्वल करेंगे और फिर बाद में अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा लास्ट फॉर्मूले जैसे ही है. ऐसे समझो कि लेट अस से हमने पहली वाली इक्वेशन पे, पहली वाली लाइन पे एक कोई पॉइंट ले लिया. ठीक है, लेट अस से दैट पॉइंट इज पॉइंट ए. ठीक है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ए, और इसको कोऑर्डिनेट्स है x1, y1. तो डेफिनेटली क्योंकि ये फर्स्ट लाइन का पॉइंट है तो ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. इजंट इट सो? और अगर ये सैटिस्फाई करेगा तो कैन वी से दैट ax1 प्लस by1 प्लस c1 दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि ax1 प्लस by1 विल बी इक्वल टू माइनस c1. दिस विल बी इक्वल टू माइनस c1. अब इस पॉइंट से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर ऑन द सेकंड लाइन. सो डी वैल्यू ही तो होगा, डी डिस्टेंस ही तो होगा. डी विल बी इक्वल टू क्या होगा, सेकंड लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c2 है, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c2 का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यही तो डिस्टेंस आएगा हमारा. बट वी नो कि ax वन प्लस by1 कितना है, दैट इज माइनस c1. तो रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी मॉड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि आ गया फॉर्मूला आपका. क्या क्लियर है? ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन क्लियर है, तो ये बात भी क्लियर ही होगी. ओके, ठीक है. अब लास्ट सेशन में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एरिया का फॉर्मूला फॉर अ ट्रायंगल. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली विल बी डिस्कसिंग शू लेस फॉर्मूला. shoelace formula. Okay, and shoelace formula is as per shoelaces, that if there are, let us say, n points, और ये सारे के सारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है उन पॉइंट्स के. ठीक है, सो एरिया विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी एडिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज एंड देन विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ये दूसरा डिफरेंट कलर से ड्रॉ करते हैं. Okay, and so on. So this is the shoelace formula. Okay, so if there are 4 points, पहले तो 3 points के लिए देख लेते हैं. 3 points है हमारे, x1, y1, x2, y2, x3, y3. फॉर्मूला तो कल देख ही लिया था. ठीक है, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं उसको. सो विल बी राइटिंग दैट एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स राइट x1, y1, x2, y2, x3, y3, और लास्ट में एक बार फिर से x1, y1 को मेंशन कर दो. सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एड these products x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1.
and then subtract x1 by 3 plus x3 by 2 plus x2 by 1. This will be formula for the area of a triangle. Clear? Similarly, for a quadrilateral, area for a quadrilateral, दो चांसेस आर कि कैट में जब भी ये क्वेश्चन आएगा एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल तो वहां पे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी. देयर विल बी सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इधर इट विल बी बेस्ड ऑन द ग्राफ और सम अदर कॉन्सेप्ट. ठीक है, पर इसको भी समझ लेते हैं साथ में. सो एरिया विल बी इक्वल टू, if there are 4 points, so and their coordinates are x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 एंड लास्ट में एक बार x1 y1 फिर से लिख लेते हैं. So area will be 1 by 2 times mod of, first of all, x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 plus x4 y1. And then subtract x1 y4, x4 y3, x3 y2 and x2 y1. So this is the formula for the area of a quadrilateral. Clear है? Okay. Question start करते हैं अब. First question. So the question is find the equation of a line passing through points 3,0 and 1,6. अभी तो easy है, हो जाएगा straight away. साफ सीधा क्वेश्चन. तो we have to find out equation of a line passing through these 2 points. So equation will be y minus y1. So y minus 0 मान लेते हैं. That is equal to x minus x1 यानी x minus 3 multiplied by slope, और slope आ जाएगा हमारा 6 minus 1 y2 minus y1 यानी 6 minus 0 upon x2 minus x1 यानी 1 minus 3. तो y will be equal to 6 upon minus 2 यानी minus 3 times x minus 3. So y is equal to minus 3x plus 9 यानी कि 3x plus y, this is equal to 9. This is our equation of the line. क्या है, क्लियर है? ठीक है. So this will be the equation. Next question. तो आंसर हो गया, सिंपल है. Next one. Find the perpendicular distance between the lines 6x plus 8y plus 6 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 12 is equal to 0. हमें जाननी है perpendicular distance between the lines. लाइंस के बीच का डिस्टेंस का मतलब कब है? जब लाइंस आर पैरेलल. और ये लाइंस हमारी पैरेलल है कि नहीं है? यस, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स तो सेम ही आ रहा है. बट सबसे पहला काम क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशंस में. तो सेकंड वाली इक्वेशन में तो कोफिशिएंट्स हमारे 3x plus 4y, फर्स्ट में है 6x plus 8y, तो फर्स्ट को डिवाइड कर दो 2 से. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 3x plus 4y plus 3 is equal to 0 and second is 3x plus 4y plus 12, this is equal to 0. So distance between them will be mod of c2 minus c1 and mod of 12 minus 3 divided by square root of 3 square plus 4 square. So this will be 9 upon square root of 25 यानी 9 by 5 will be the answer. Distance will be 9 by 5. Okay. Next question. A line L parallel to y axis bisects the line segment connecting point A and point B at point C. If line L intersects x axis at point D, find the length CD. So question हमारा कह रहा है line parallel to y axis bisects the line segment connecting point A and point B at point C. If line L intersects x axis at point D, तो length CD हमारा क्या होगा? What will be length CD in the question? And line is parallel to y axis. Okay. So if line is parallel to y axis, that implies कि x कोफिशिएंट तो कांस्टेंट होगा. So line का equation in that case will be x equal to some constant when line is parallel to y axis.
ओके, सिमिलरली अगर हमारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो उस केस में क्या होता? इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन सच ए केस हमारा y कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1। क्या ये क्लियर है? ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, तो इन करंट कंडीशन हमारा लाइन का इक्वेशन क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि x कोफिशिएंट विल बी कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, दैट विल बी आवर इक्वेशन। एंड लाइन इज बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट a कनेक्टिंग a एंड b। बाइसेक्ट कर रही है यानी कि लाइन इज गोइंग थ्रू मिड पॉइंट। अगर बाइसेक्ट कर रही है अ लाइन सेगमेंट को, तो गोइंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। सो पॉइंट ए है हमारा 3,5, पॉइंट बी है 1,9। सो मिड पॉइंट m विल बी 3 + 1/2 यानी 2, 5 + 9/2 2,7। So line is going through that point. So point 2,7 is lying on this line. Point 2,7 is on the line x equal to c. तो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू सम कांस्टेंट, और x हमारा क्या है? x कोफिशिएंट इज 2 इन केस ऑफ पॉइंट, यानी कि डेफिनेटली c मस्ट बी इक्वल टू 2, बिकॉज जो पॉइंट है वो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 2 इज अवर लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑल्सो लाइन L इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट D, तो फाइंड द लेंथ CD। x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D, सो सिंस x इज इक्वल टू 2 है, x एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 2,0, बिकॉज y कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सो 2,0। दिस विल बी पॉइंट D, और पॉइंट C है हमारा पॉइंट 2,7। ओके, C इज 2,7, D है 2,0, CD लेंथ कितना आ जाएगा हमारा? 7 यूनिट्स। बिकॉज D इज 2,0 और C है 2,7, तो डिस्टेंस विल बी 7 यूनिट्स। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? आंसर आ जाएगा 7 यूनिट्स। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a line L passes through the points 2,4 and 3,-2. The line L is rotated by 90 degrees in the clockwise direction about the point where the line cuts the x-axis. What is the equation of the new line? So line L is passing through 2 points 2,4 and 3,-2. Okay, 2,4 and 3,-2. That is line L passes through 2 points. The line L is rotated by 90 degrees in the clockwise direction. 90 degrees in the clockwise direction में rotate कराया है, but rotate कराया है around a point where the line cuts the x-axis. ठीक है, so let us say this is the line और this is cutting x-axis at this point. ठीक है, कोई भी random point ले लिया, डेफिनेटली 2 पॉइंट्स के बीच में वो पॉइंट नहीं आएगा, बट ऐसे समझ लो कि दिस इज द लाइन और लाइन कट कर रही है एक्सिस को एट दिस पॉइंट। ओके, और अराउंड दिस पॉइंट हमने रोटेट कराया बाय 90 डिग्रीज। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट कि अगर इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कराया तो ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा, दैट पॉइंट इज फिक्स्ड, और उस पॉइंट के अराउंड ही हमने लाइन को रोटेट कराया है, तो घुमा दो इसको बाय 90 डिग्रीज, तो दिस विल बी द न्यू लाइन। ठीक है, दिस एंगल विल बी 90, दिस विल बी लेट अस से लाइन L1, and since this angle is 90 degrees, so L1 will be perpendicular to L. And this point, if this point is, let us say, point P, so point P lies on both lines L and L1. Okay. Equation of the new line find out करना है, तो पहले तो old line का equation find out करते हैं।
और ओल्ड लाइन का इक्वेशन स्लोप हमें मिल जाएगा, इक्वेशन ही मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द ओल्ड लाइन विल बी y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन आ गया हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो इक्वेशन आ जाएगा दिस इज -6/1 यानी कि -6 स्लोप हो गया। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -6x प्लस 12 और स्लोप आ गया हमारा m1 आ गया -6। बट सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1। सो यहां से m2 आ जाएगा इक्वल टू 1/6 स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ द न्यू लाइन L1। एडिशनली हमें पॉइंट भी तो चाहिए, पॉइंट P एट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस और x एक्सिस को अगर कट कर रही है एट दिस पॉइंट यानी कि y कोफिशिएंट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो दिस विल बी x, 0। तो y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे। सो -4 -12 इज इक्वल टू -6x यानी कि x विल बी इक्वल टू 8/3 -16/6 यानी कि 8/3 आ जाएगा। सो P पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट है 8/3 और y कोऑर्डिनेट है 0। नई लाइन पे द स्लोप इज 1/6 और दिस पॉइंट P लाइज ऑन द न्यू लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन विल बी इक्वल टू y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 8/3 इंटू 1/6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इनफैक्ट 6 1/6 इंटू 8/3 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18y विल बी इक्वल टू 3x माइनस 8। 18y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 8 और यही हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, न्यू लाइन L1 की इक्वेशन। 18y इज इक्वल टू 3x माइनस 8, दिस इज द न्यू इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट P। पॉइंट P को फाइंड आउट किया, उसके लिए वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओरिजिनल लाइन। तो ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट किया हमने, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट किया बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज लाइन इज कटिंग द x एक्सिस। तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 0 है, पुट किया, हमें x इक्वल टू 8/3 मिल गया। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8/3, 0। अकॉर्डिंगली फिर क्योंकि ओल्ड लाइन का जो हमारा स्लोप है m1 वाज इक्वल टू -6 तो m2 होगा इक्वल टू 1/6 बिकॉज बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड अकॉर्डिंगली फिर हमने नई लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। दैट इज द प्रोसेस। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the lines x equal to 3, x equal to 5 and 2x minus y is equal to 4 and x axis. We need to find out area of the quadrilateral. Formed by the lines x equal to 3 and x equal to 5. So these lines will be parallel to y axis. X equal to 3. We will go from the point 3 is 3, 0 and x equal to 5. ठीक है, थर्ड लाइन हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है एक लाइन एंड वन लाइन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे इन सारी लाइंस के। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दीज आर पैरेलल लाइंस and 2x minus y is equal to 4 will be intersecting both these lines x equal to 3 and x equal to 5. तो 2x minus y is equal to 4 को का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो x equal to 3 से, तो x equal to 3 वैल्यू क्या आ जाएगा y का, 2x पुट कर दो x equal to 3 तो 2 into 3 minus y is equal to 4 तो y आ जाएगा हमारा 6 minus 4 यानी कि y is equal to 2 आ जाएगा। तो 3, 2 is the first point. Similarly x equal to 5 पुट करो तो सेकेंड लाइन x इक्वल टू 5 से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो 2 into 5 माइनस y इज इक्वल टू 4 तो 10 minus 4 y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो 5, 6 लेट अस से दैट इज पॉइंट बी। तो ये हमारी एक बाउंड्री बन गई, बाकी तो बाउंड्रीज पहले से ही क्लियर थी। सो दिस इज अवर क्वाड्रिलेटरल। इफ दिस पॉइंट इज C, दिस इज 5, 0, this is D, this is 3, 0.
So what will be the area of the quadrilateral? This quadrilateral is basically a trapezoid, trapezium है. Because two sides are parallel. Length of AD क्या है? AD is 2 units. BC, AD and BC parallel है. BC की length क्या है? 6 minus 0, 6 units है. और the distance between AD and BC, that distance is 5 minus 3 equal to 2. This distance is 2. So area will be equal to 1 by 2 times sum of parallel sides, यानी कि 1 by 2 times 2 plus 6 multiplied by distance between the parallel sides, which is equal to 2. तो एरिया आ जाएगा हमारा 8 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर है? क्या बात समझ में आती है? सो एरिया विल बी, एरिया इनक्लोज्ड विल बी 8 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question is, find the area of the quadrilateral ABCD with coordinates of the vertices A, B, C, D, 4, 10, 9, 7, 11, 2 and 2, 2. So what will be the area? Apply कर देते हैं formula straight away. तो area will be equal to 1 by 2 times, write the coordinates in the proper order, 4, 10, 9, 7, 11, 2, 2, 2 और लास्ट में एक बार फिर से 4, 10. हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में लिखेंगे ए बी सी डी को. ठीक है, ऑर्डर उल्टा पुल्टा नहीं करना है. क्वाड्रिलेटरल के केस में ट्रायंगल में उल्टा पुल्टा करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज 3 ही पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो उल्टा पुल्टा करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वाड्रिलेटरल में कभी भी ऑर्डर को चेंज नहीं करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल add these products. So this will be equal to 1 by 2 times mod of 4 into 7, 28 plus 18 plus 22 plus 20 minus now subtract these values. So minus 4 into 2 8 plus 2 into 2 4 plus 77 plus 90. So value क्या आ जाएगा हमारा 1 by 2 times mod of this is 28 plus 18 46 68 88 minus 12 89 179. So this is 91 by 2, which is 45.5 square units. (45.5 square units), that will be the answer. क्या ये क्लियर है? ठीक है, यही आंसर हो जाएगा. अब एक बार डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन में. एक बार डायग्राम बना के भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. पॉइंट ए इज 4, 10. ठीक है, पॉइंट ए इज 4, 10. तो दिस इज पॉइंट ए 4, 10. पॉइंट बी इज 9, 7. This will be 9, 7, let us say. Point C is 11, 2. So 11, 2, this will be somewhere here. And point D is 2, 2. So this will be the quadrilateral. Since point C and D का y coordinate same है, so this line is parallel to x axis, isn't it so? x axis से parallel है. और डिस्टेंस भी सी और डी के बीच का कितना है? दैट इज 9 यूनिट्स. 9 यूनिट्स डिस्टेंस आ जाएगा. नाउ कनेक्ट ए एंड सी. सो वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी. और ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकालना इजी है, बिकॉज बेस इज क्लियर. बेस इज 9 और बेस हमारा क्या है?
एट y इज इक्वल टू 2, इजंट इट सो? और पॉइंट ए है एट y इज इक्वल टू 10, तो हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट विल बी 10 माइनस 2, यानी कि दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। बेस हमारा y इज इक्वल टू क्यों है? बिकॉज अल्टीमेटली y इज इक्वल टू ही कोफिशिएंट है हमारा, कोऑर्डिनेट है हमारा, पॉइंट सी और पॉइंट डी दोनों में ही। अगर नहीं होता तो फिर डिफरेंट होता, तो फिर ऐसे नहीं कर पाते, बट क्योंकि y कोफिशिएंट, y कोऑर्डिनेट हमारा सेम है पॉइंट सी और पॉइंट डी में, पता नहीं कोफिशिएंट बार बार क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमारा सेम है फॉर पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, दैट इज वाई y इज इक्वल टू है हमारा बेस, एंड हेंस हाइट हमारी है 8। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू 9, 36 यूनिट्स। और ट्रायंगल ए बी सी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी हमारे कोफिशिएंट्स कोऑर्डिनेट्स कॉमन नहीं है, सो दैट इज वाई वहां पे तो ट्रायंगल का प्रॉपर एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ x1 विच इज 4 इंटू 7 माइनस 2 प्लस x2 9 इंटू 2 minus 10 plus x3 which is 11 into 10 minus 7. So this becomes 4 into 5, 20 minus 72 plus 33. So 53 minus 72 which comes out to be 19/2, 9.5. So area of triangle ADC is 36, triangle ABC is 9.5. The area of quadrilateral ABCD will be equal to 36 plus 9.5, which is equal to 45.5 square units. Okay, क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, एंड देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर तो यू कैन कमेंट अबाउट दैट डाउट्स। और सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।